चलो ठीक है यार, लेट आई एम स्टार्टिंग. ओके, so today you'll be building your first Figma plugin, but before we jump onto the code part, let's discuss the basics of this, like how what is a plugin basically and how these things work. So let's jump in. Yeah, so we'll be discussing the basics of plugin, internal architecture, and we'll be having a hands-on experience as well. And at last, we'll be having a Q&A session in case you got any doubts. So you can discuss it right now. Okay. Chalo, moving forward. So first of all, यार, what is a Figma plugin? ठीक है, so plugins are programs or applications created by the community that extends the functionality of Figma's editor. See, basically, Figma has a lot of functionalities, but with plugins, we can actually extend that functionality to a great extent, right? So, and Dualite is also a Figma plugin only. So, what Dualite does, as you guys already know, we convert designs to code, right? So, basically, what we are doing, we are extending the functionality of what Figma can do. Right. So basically that's what a plugin is. And yeah, plugins run in files, perform one or more user actions, and allow users to perform customize their experience or create more efficient workflows. And this is a great design made by our designer. And yeah, what tech stacks you need? It's very simple actually. You need the typical web tech stack, JavaScript, HTML, and CSS. You can extend more over with like using React or something, but using React or TypeScript. But the core thing is JavaScript, HTML, and CSS. And that's why JavaScript is loved so much because you can build literally anything with JavaScript. Okay. I'm getting more invites. JavaScript. Okay. Okay. So yeah, see, plugin में क्या होता है ना? It's like two parts in a plugin. One is a sandbox and one is an iframe. You see, plugin is itself like an iframe. It runs as an embed inside the Figma application. It's not a separate application. It runs inside Figma in an iframe. So, like, think when you ran Dualite last time. So, a window will pop up inside Figma only. So, that window is actually an iframe, right? So, all your UI part will reside in this iframe. Okay. This iframe will have the UI and everything, and this has access to the browser. All the DOM APIs, all the browser APIs, network access. Like if you want to call an API or something, so you will be doing that in the iframe. And the core logic resides in the sandbox. Okay. All the like, let's say for Dualite, keep that as an example. So Dualite has all the internal algorithms and everything. So all that resides inside the sandbox. Okay. And these two parts communicate via post message. Okay. I'll make it more simpler for you. It's very similar to you must have used that add event listener and get listener, those kinds of things. So basically, post message is what? You emit an event and you listen to an event. You getting me? Hey, let's keep this interactive now. You guys keep writing on the chat, or if you want to say something, you can just type in there. You're guys getting what I'm saying? You got this? What post message is? Post message is basically you emit an event, and using this on message thing, you basically receive that event. Okay, so this is how the sandbox and iframe communicate with each other. And why it is like this? Why it's like the sandbox wala cheese and this iframe wala cheese? That is because iframe is to be there if you are creating any embedded application. So the UI has to be in an iframe. And the sandbox part for security purposes and or a lot of things. That's why they decided, the Figma people decided to keep it in a sandbox. So, and one more thing, like last time you ran Dualite. So Dualite essentially has the access to the design, right? Whatever is in the design. So the sandbox part has the access to the design, the complete design. That's why it has written your JS code has access to the design. So this is the basic structure of everything. This basic structure of plugin. Okay. So should I move on, or you guys need more elaboration on this?
जो राइट ऑन चैट ना. फाइन फाइन, लेट्स गो अहेड. चलो. अब, how Dualite or any plugin accesses the design inside the thing. Right? Inside the Figma, you need access to the design, right? So for this, we have the Figma plugin API. It's a separate API kind of structure. So the design context and other metadata can be accessed using the Figma global object. Like, just I'll try to relate things with the normal web thing. So this will be more easier for you guys to relate. अभी जैसे कोई भी वेब ऐप बनाते हो ना, यू हैव दैट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ना. डॉक्यूमेंट करके एक जो होता है, जिसमें यू डू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर. देयर आर अ लॉट ऑफ फंक्शंस एंड a lot of members, data members you have inside that document object. So very similar to that, you have a Figma object that is called a Figma global object. So इसके अंदर you have access to a lot of variables, a lot of functions which you will need to work as a plugin. Okay. So Figma Global Object is basically everything. It is called the plugin API. Basically, it has a lot of functions. And to see one thing you see on the screen, Figma.currentPage.selection. This gives you the current selected node. This is how Dualite sees कि आपने कौन सा नोड सिलेक्ट किया है. Right. So this gives you an array of selected nodes. You can select a single node, you can select multiple nodes as well. So this gives you that. All properties of a node can be accessed using this object only. Every node has a unique ID. Yeah, this is also very important. Every node on Figma. Acha, one more thing. I'm saying node continuously. So what is a node? First of all, anything you made on Figma. It can be a rectangle, circle, frame, group, anything. All that is a node. Okay. And let's go even deeper. Figma पर everything is a tree. Okay. Like frame, you make a frame. Inside there are two rectangles. So internally it uses a tree thing, tree or graph, whatever you call it. I'm not going that much, but it's like a tree. The frame has two children, like two rectangles basically. So all the things will be accessed by a unique ID. And to fetch a ID, you got this function, figma.getNode by ID. I'm mentioning very common functions which you will need when you create your first plugin. That's why I'm mentioning only a few methods. Rest we'll see while doing the hands-on part. One very important thing. With plugin, you cannot access anything beyond the current file. राइट. लेट्स से यू आर ऑन अ फाइल वन. ठीक है, फाइल वन के अंदर आपने प्लगइन चलाया, तो फाइल टू के किसी भी चीज का आपके पास एक्सेस नहीं होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. चलो. You guys got this part, or you guys need more on this? Keep the chat interactive. सर नोड नोड का एक बार बता दीजिए. नोड. अच्छा, नोड पे मतलब क्या चीज, नोड क्या होता है वो? किसने पूछा था यार, फिर से बताना. वैभव वैभव. वैभव. हाँ, क्या क्वेश्चन क्या था यार, फिर से बताना. वो नोड का समझ में नहीं आया. देखो, नोड क्या होता है? ट्री. ट्री पढ़ा है तुमने एक बार भी? हाँ पढ़ा है ना. बीटी. हाँ, ट्री होता है, तो ट्री में हर चीज एक नोड होती है, राइट? तो हम्म. फिग्मा भी एक ट्री है, समझ लो. डिजाइन जो हम्म. बनती है, तो डिजाइन हम्म. भी अपने आप में एक ट्री है. तुमने एक फ्रेम बनाया, उसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाया, एक हम्म. रेक्टेंगल एक सर्कल बना दिया तुमने, मान लो. ठीक है. अच्छा. तो अब इंटरनली इट्स लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर, कि भाई ये हम्म. रूट नोड हो गया फ्रेम तुम्हारा, और उसके फिर दो चिल्ड्रन हो गए. सब ट्री ऐसे रहेंगे. स्ट्रक्चर होता है. हम्म. हाँ. सब ट्री रहेंगे उसके. अरे यार, उसके चिल्ड्रन है ना. हाँ सॉरी सॉरी चिल्ड्रन. ट्री का हर नोड का चाइल्ड होता है. चाइल्ड. अब जैसे ये सब नोड्स होते हैं, रेक्टेंगल हो गया, तुम्हारा एलिप्स हो गया, है ना, इन सब, ये सब लीफ नोड्स होते हैं. इनके चाइल्ड्स नहीं हो सकते, है ना, ऑब्वियसली. ये तो लास्ट वाले नोड्स होते हैं, इनके अंदर कुछ नहीं हो सकता. बट जैसे फ्रेम हो गया तुम्हारा, ग्रुप हो गया, राइट, फ्रेम हो गया, ग्रुप हो गया, दीज आर पेरेंट टाइप वाले नोड. इनके चाइल्ड्स हो सकते हैं. ऐसे स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. अभी और आएंगे इस पे, डिटेल में आएंगे अभी, है ना.
ओके। चलो नाइस। हाँ देखो इस पे समझो, ऐसे होता है। अब तुम्हारा फिग्मा ऑब्जेक्ट हुआ, उसके अंदर तुमको मिलेगा डॉक्यूमेंट नोड। ये प्रॉपर ऑफिशियल टाइप है। मैं तुम फिग्मा के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तुम्हें मिलेगा डॉक्यूमेंट नोड। यहाँ से डॉक्यूमेंट लिखा है, डॉक्यूमेंट नोड होता है। अब डॉक्यूमेंट नोड, अब देखो अच्छा, फिग्मा डिजाइन में मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं। तुम अभी कि सबके पास फिग्मा ऑब्वियसली एक्सेस होगा ही। फिग्मा कोई भी फाइल खोल के देखो एक बार, अच्छा समझ में आएगा। अपने पैरल पे अपने अपने पीसीस पे एक फाइल खोल लो, फिग्मा फाइल कोई सी भी। उसमें तुम जो फाइल खोलोगे तो सबसे ऊपर होगा, मतलब पूरी फाइल को बोलेगा डॉक्यूमेंट। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट नोड, उसके अंदर होते हैं पेज नोड्स। मान ले 3 पेज हैं उस फिग्मा फाइल में, ठीक है। तो 3 पेज नोड होंगे। ठीक है, इमेजिन करो ट्री की तरह, इमेजिन करके देखो। एक रूट नोड हुआ तुम्हारा डॉक्यूमेंट, उसके अंदर आगे तुम्हारे 3 पेज नोड्स, अगर 3 पेज हैं। फिर हर पेज के अंदर, फिर अब वो तुम्हारा पूरा कैनवस आ गया। अब वो तुम्हारे, तुमने जो भी बनाया हो अंदर, फ्रेम बनाया, ग्रुप बनाया, रेक्टेंगल बनाया, जो भी बनाया, अब वो उस पेज नोड के अंदर आता रहेगा। ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही ट्री जैसी चीज है। यार कुछ चलाओ नहीं यार, पेन वेन ना चलाओ, ये हटा दो। ठीक है। हाँ तो मैं कहाँ चल रहा था? यार डिस्टर्ब कर देते हो यार, ऐसे स्क्रीन पे कुछ मत करो। जो भी बोला बोल दो या चैट पे कर दो, ठीक है। हाँ तो ये डॉक्यूमेंट हुआ, डॉक्यूमेंट नोड हुआ, उसके अंदर पेजेस आ गए जितने भी पेज हैं। आप फिग्मा पेड प्लान वाला कुछ कर दिया है तो 3 पेज हो सकते हैं मैक्सिमम। पेड प्लान होगा तो आप मल्टीपल पेज कर लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेज नोड आया, पेज नोड के अंदर फिर बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर हो गया कि भाई एक नोड आई, उसके अंदर फिर चिल्ड्रंस का उन्होंने एरे दे दिया। और फिर आप उस पर ट्रैवर्स करो, फिर उसके अंदर चिल्ड्रंस, फिर ऐसे ट्रैवर्स करो। सेम कंसेप्ट है। ठीक है। अब वो समझ में आ गया ना, ट्री स्ट्रक्चर कैसे होता है सारा, नोड्स का। वैभव तुमको भी क्लियर हो गया ना? चलो नाइस। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज किसी भी प्लगइन में, मतलब पहले प्लगइन में नहीं बट मोस्टली जो प्लगइन्स होते हैं, आपको कुछ ना कुछ इंटरनेट से कनेक्टिविटी तो चाहिए, राइट? कैसे आप कम्युनिकेट करोगे? कुछ भी एपीआई कॉल करनी है तो कैसे एपीआई कॉल करोगे? ठीक है। तो अभी बेसिक, सबसे बेसिक समझते हैं, स्टार्टिंग से आते हैं। पहले एपीआई कॉल किसके थ्रू होती है? नॉर्मली वेब के थ्रू भी, ब्राउजर के थ्रू होती है, राइट? एपीआई वाला जो पूरा सिस्टम होता है ना, नेटवर्क एपीआई जिसको बोलते हैं, तो ये सारा ब्राउजर के थ्रू होता है। कोई भी ब्राउजर ले लो, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, तो उन सबके इंटरनल एक इंजन होता है जो नेटवर्क एपीआई को हैंडल करता है। तो एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए, पहली बात, कि एपीआई या कोई भी टाइप की इंटरनेट वाली एप्लीकेशन है, उसमें आपको ब्राउजर ही चाहिए। ठीक है। बिना ब्राउजर के काम नहीं होगा, बिना ब्राउजर के एपीआई कॉल नहीं होगी नेटवर्क के उसमें। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप सोचो खुद से, अब आप बताओ कि भाई प्लगइन है। ठीक है, तो प्लगइन में 2 पार्ट है, सैंडबॉक्स है और आई फ्रेम है। तो इसमें से आई फ्रेम से एपीआई कॉल करोगे आप, कि सैंडबॉक्स से एपीआई कॉल करोगे? कोई सी भी रैंडम एपीआई, कोई भी नेटवर्क एपीआई की बात हो रही है यहाँ पे। एक्सियोस है, फेच है, आई फ्रेम से करोगे या सैंडबॉक्स से करोगे? बताओ चैट पे बताओ। हाँ आई फ्रेम आ गया, आते जा रहे हैं, सही है सही है। आई फ्रेम से करोगे, बिल्कुल सही हाँ जवाब। అవునండి यार म्यूट कर लो यार। हाँ चलो सही है। చెప్పలే అంత బిజీగా లేను हम्म। हाँ यार, तो अब ये चीज तो क्लियर है ना, नेटवर्क एपीआई करने के लिए आपको ब्राउजर चाहिए। अब ब्राउजर का एक्सेस कहाँ पर था? वो आई फ्रेम पे था, पिछली साइड में हमने देखा था। आई फ्रेम हैज एक्सेस टू द ब्राउजर एपीआई, पीछे लिखा था वहाँ। तो कोई भी आपको एपीआई कॉल करनी है तो आप यूआई से करोगे। ठीक है। अब यूआई क्रिएट करना पड़ता है आपको, क्योंकि देखो इंटरनली प्लगइन इज अ सैंडबॉक्स, ठीक ना? तो यूआई को शो करने के लिए एक फंक्शन है फिग्मा ऑब्जेक्ट का, फिग्मा डॉट शो यूआई। ठीक है। अब यहाँ पर स्पेशली एपीआई कॉल करने के लिए लिखा हुआ है। बहुत इसके वेरिएशंस होते हैं, अभी उस पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। बट एक बेसिक इस चीज का मतलब ये है कि एपीआई कॉल करनी है तो आई फ्रेम से करेंगे।
अच्छा, मान लो आपको कुछ करना है, मतलब सैंड बॉक्स वाले पार्ट में आपको एपीआई कॉल करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत केसेस होंगे आपको पड़ेगी जरूरत कि भाई बहुत अचानक से, मतलब बहुत जरूरी है, हमको वही करना पड़ेगा कॉल। तो आप कैसे करोगे? आप एक इनविजिबल आई फ्रेम क्रिएट करोगे। इट्स इट्स काइंड ऑफ अ ट्रिक जैसा चीज। आप एक इनविजिबल आई फ्रेम क्रिएट किया आपने। देखो, ध्यान से देखो इस कोड को जो स्क्रीन पे है, तो समझ में आएगा तुम लोगों को कि एक इनविजिबल आई फ्रेम क्रिएट कर दिया आपने। ठीक है, और उसके अंदर स्क्रिप्ट डाल दी। समझे? और स्क्रिप्ट क्या कर रही है? एपीआई कॉल करके विंडो डॉट पेरेंट डॉट पोस्ट मैसेज करके उसने वापस वहां भेज दिया आई सैंड बॉक्स में। है ना? इट्स अ वेरी गुड ट्रिक। बहुत बढ़िया चीज है। अभी जब आएंगे आगे और इस पे एक्सप्लेन करेंगे नेटवर्क एपीआई वाले पार्ट को। बट अभी मेन चीज जो समझने वाली है वो यही है कि नेटवर्क एपीआई ब्राउजर से कॉल होती हैं, ब्राउजर का चीज आई फ्रेम में होता है। तो ये है, और डायरेक्ट आप सैंडबॉक्स से एपीआई कॉल नहीं कर सकते, आपको एरर दे देगा। अच्छा, हर्ष भाई कह रहे हैं कि कैन यू प्लीज वंस मोर एक्सप्लेन आई फ्रेम एंड सैंडबॉक्स। आई फ्रेम सैंडबॉक्स का, पीछे जाता हूँ उनको, कहाँ गया? नहीं, खो गया रुको। देखो, आई फ्रेम सैंडबॉक्स का बड़ा सिंपल है। दो पार्ट है प्लगइन के, एक यूआई है और एक लॉजिक है, ऐसे समझ लो। ठीक है, यूआई है तुम्हारा आई फ्रेम। यूआई दिखाने के लिए तुमको एम्बेड करना है फिग्मा के अंदर, तो हाँ यू नीड टू हैव अ आई फ्रेम। ठीक है, सांग तुमको आई फ्रेम चाहिए उसके अंदर। हो एका थुकून ठेवला का नाही का तू? हाँ क्या है भाई, फालतू में क्यों कर रहे हो? कुछ कुछ भी बोलना है तो जस्ट चैट पे डालो, फिर अनम्यूट करके बोलो, ठीक है? हाँ, समझ गए ना हर्ष? चलो, नाइस नाइस। चलो, मूविंग अहेड। अब आते हैं, अब बातें हो गई बहुत सारी, अब आप कोड पे आते हैं सीधे। ठीक है, अब सब लोग एक वीएस कोड की विंडो खोल लो, और एक नहीं, पहले फिग्मा खोलो अब आप सब लोग। ठीक है, सब लोग फिग्मा खोल लो। अब यहाँ पर मेरे साथ साथ करते जाना। ठीक है, सब लोग फिग्मा खोल लो, एक नई फाइल। हाँ, ये विंडो आ रही होगी सबके में, है ना? अब एक नया फाइल खोल लो। अब यहाँ आ गए तुम, अब ये इस पे जाओ। ये एक रिसोर्सेस का ऑप्शन आता है। ठीक है, रिसोर्सेस पे जाओ, प्लगइन्स पे जाओ, और फिर इसको पकड़ के डेवलपमेंट पे चले जाओ। ठीक है, इतना कर लिया सबने? जो जो करता जाए वो मुझे चैट पे अपडेट देता जाए, तो मुझे भी पता रहे कि ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग मी। ठीक है, ठीक है, इसको डेवलपमेंट पे जाके प्लस करो। ठीक है, प्लस पे करना है। प्लस में करके न्यू प्लगइन। ठीक है, न्यू प्लगइन करोगे, प्लगइन का नेम देना एक, और फिर ये फिग्मा डिजाइन चूज करना, और फिर नेक्स्ट, और फिर कस्टम यूआई वाला प्लगइन चाहिए आपको। ठीक है, कस्टम यूआई। हो गया इतना? कस्टम यूआई पे क्लिक करो, प्लगइन का कुछ नेम दो, एंड सेव एज। तो इससे आपका एक टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। सही है?
कैन यू रिपीट अगेन? ओके, चलो फिर से रिपीट करता हूँ। नया कोई भी फाइल खोला, फिर रिसोर्सेस पे गए, रिसोर्सेस के बाद डेवलपमेंट किया इसको, ड्रॉप डाउन से डेवलपमेंट चूज किया, तब आप डेवलपमेंट मोड में आ गए हो बेसिकली। फिर प्लस मतलब न्यू प्लगइन, न्यू प्लगइन पे क्लिक किया, न्यू प्लगइन से आपकी क्रिएट प्लगइन की विंडो आ गई। कुछ भी आपको जो पसंद हो आप नाम दो प्लगइन का, उसमें फिर फिग्मा डिजाइन का प्लगइन आप बना रहे हो, फिर नेक्स्ट कर दो। ठीक है, फिर कस्टम यूआई जो तीसरा ऑप्शन है, कस्टम यूआई कर दो, सेव एज कर दो, आपका नया प्लगइन बन जाएगा। फिर जो एक नया फोल्डर स्ट्रक्चर बनेगा बेसिकली, ठीक है, जैसे रिएक्ट का बनता है, एक एसआरसी हो गया, एक वैसे हो गया, आपकी टीएस कॉन्फ़िग फाइल हो गई, ये सब वो अपने आप बना के दे देगा आपको। आप मैनुअली खुद से भी पूरा स्क्रैच से बना सकते हो, बट क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो आप उसका यूज कर लो, इट विल बी सिंपलर फॉर यू। सेव एज करोगे तो आपका नया प्लगइन क्रिएट हो जाएगा, और क्रिएट हो जाए वो तो उसके बाद फिर आप उस फोल्डर को VS कोड में खोल लो। ठीक है, मैं नया क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। आ जाओ। हाँ यार, हो गया, किसका किसका हो गया चैट पे डालते जाओ। आयुष का हो गया, एक ही का हुआ। अरे यार, डेवलपमेंट कैसे नहीं मिल रहा तुमको? ड्रॉप डाउन में तुम गए इसमें, ये रीसेंट एंड सेव्ड आ रहा होगा अभी। ठीक है, अंजलि और जिग्नेश, ये तुमने खोला होगा तो ये आ रहा होगा, फिर नीचे बस डेवलपमेंट पे जाओ। अरे एक मिनट, तुम लोग उस पे कर रहे हो क्या? ब्राउजर पे कर रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम। वेब ऐप नहीं यूज कर सकते हो, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो मेरा फिग्मा डाउनलोड वाला चल रहा है। ओके, ये मैं भी भूल गया यार। ठीक है, आप जाके फिग्मा डाउनलोड करो, जो भी आपका विंडोज है या मैक है, आप जाके डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करो। ठीक है, कि फिग्मा क्योंकि जो डेवलपमेंट का ऑप्शन होता है वो सिर्फ डेस्कटॉप ऐप पे देता है। ये डाउनलोड कर लो सब लोग, figma.com/downloads पे जाओ, फिर डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड कर लो, जो भी आपका वो है, मैक है या विंडोज है, बस ये करना है आपको डाउनलोड। बस ये डाउनलोड करोगे तो फिर वो डेवलपमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड कर लो, ले लो 2 मिनट। ठीक है। हम्म, अच्छा, जिसका जिसका डाउनलोडेड है उनका हो गया। ये फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, इस पे जाओ, रिसेंट एंड सेव को डेवलपमेंट करो, डेवलपमेंट मोड पे आ जाओ, प्लस पे क्लिक करो, न्यू प्लगइन एंड फिग्मा डिजाइन। ओके, ठीक है। आज जिसका जिसका हो गया है, 2-3 लोग का मैं देख रहा हूँ हो गया है, तो वो लोग जाके तब तक कोड देखो क्या है वो, क्या क्रिएट हुआ है उस पर थोड़ा सा नजर मारो।